السلام علیکم. آج 5 بجے میں خوش آمدید کہیں گے. میں ہوں مونس رضا اور میں ہوں کرن رضوی. آغاز میں آپ کو بتائیں کہ شہداد پور کے نجی اسکول میں گولی لگنے سے طالب علم زخمی ہو گیا، جسے تشویشناک حالت میں حیدرآباد منتقل کر دیا گیا ہے. تفصیلات بتائیں گے آج نیوز کے نمائندے عبد الرحمان خاص. جی عبد الرحمان، طالب علم کو گولی کیسے لگی، پولیس کا کیا کہنا ہے؟ جی بالکل، یہ بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے سانگڑ کی تحصیل شہداد پور کے نجی اسکول میں، جہاں پر تعلیم حاصل کرنے والے 15 سالہ لڑکے جس کا نام ریحان راجپوت ہے، مبینہ گولی لگنے سے سخت زخمی ہو گئے، جسے قریبی سمس اسپتال شہداد پور لے جایا گیا. بعد میں تشویشناک حالت میں انہیں حیدرآباد منتقل کیا گیا ہے. اس سلسلے میں جب میری ڈی ایس پی شہداد پور سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ریحان نامی انہیں گولی لگی ہے، اس سلسلے میں اسکول کے مالک کو گرفتار کر لیا گیا ہے. تاہم اس سلسلے میں تفتیش جاری ہے، جیسے مزید پیش رفت ہوگی تو ہم آپ کو بتائیں گے. تفتیش جاری ہے، پیش رفت ہوگی تو مزید بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے. تفصیلات بتا رہے تھے عبد الرحمان خاص خیلی، بہت شکریہ آپ کا. ہب کی نجی فیکٹری میں گیس لیکیج سے دھماکہ ہوا، جس میں 12 مزدور زخمی ہو گئے. زخمیوں کو کراچی کے اسپتال منتقل کر دیا گیا، جن میں سے کچھ کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے. پولیس کے مطابق نجی فیکٹری میں کھدائی کا کام جاری تھا کہ گیس لیکیج سے دھماکہ ہو گیا. واقعے میں ہلاکتوں کا بھی خدشہ ہے. بدین میں 4 روز قبل لاپتہ ہوئے نوجوان کی لاش نہر سے مل گئی ہے. ورثا نے پولیس کے خلاف احتجاج کیا اور بدین حیدرآباد روڈ کو بند کر دیا. ورثا کا کہنا ہے کہ وسیم پولیس کے تشدد سے جاں بحق ہوا. تفصیلات جانتے ہیں آئی نیوز کے نمائندے عمران عباس سے. عمران عباس، کیا معاملہ ہے، یہ آگاہ کیجیے گا. بالکل، معاملہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ٹنڈو بھاگو پولیس نے اپنے حدود کو کراس کر کے تلار کی حدود میں جو ہے وہ کارروائی کی، جس سے ایک نوجوان جو ہے وہ وسیم اس وقت 4 روز پہلے لاپتہ ہو گیا تھا. اور ورثا کا مسلسل یہی تھا کہ پولیس نے تشدد کر کے اس کی لاش جو ہے وہ نہر میں پھینک دی ہے، اور مسلسل ان کا 4 روز سے احتجاج تھا. آج اس کی لاش جو ہے وہ تلار کے قریب نہر اکرم وہاں سے مل چکی ہے، جس کے بعد ورثا نے تلار میں شٹر ڈاؤن کرا کے بدین حیدرآباد روڈ پر دھرنا دے دیا ہے، جس کے بعد ٹریفک بھی معطل ہو گئی ہے. جبکہ ابتدائی تحقیق میں ایس ایس پی بدین شہرواز چاچڑ نے ایس ایچ او ٹنڈو بھاگو کو جو ہے وہ معطل کر کے اس کے گرفتاری کے بھی احکامات دیے تھے، لیکن ایس ایچ او ٹنڈو بھاگو بشیر چانڈیا جو ہے وہ اس وقت فرار ہو چکا ہے. ورثا کا احتجاج جاری ہے، تلار میں اس وقت شٹر ڈاؤن ہے، اور ورثا کا یہی کہنا ہے کہ پولیس کی جانب سے تشدد کر کے نوجوان کو جو ہے وہ مارا گیا ہے اور لاش اس کی نہر میں پھینک دی گئی ہے. ورثا کا کہنا ہے کہ پولیس تشدد سے وسیم مارا گیا ہے. بہت شکریہ. میں نمائندے عمران عباس تفصیلات بتا رہے تھے. ابھی لاہور سے خبر شامل کریں، جہاں پریس کلب کے باہر نامعلوم افراد کی فائرنگ سے نجی ٹی وی کا رپورٹر حسنین شاہ جاں بحق ہو گیا. ملزمان فائرنگ کے بعد موقع سے فرار ہو گئے. لاہور سے ہی آپ کو خبر دے رہے ہیں، جہاں پریس کلب کے باہر نامعلوم افراد کی فائرنگ سے نجی ٹی وی کا رپورٹر حسنین شاہ جاں بحق ہو گیا. ملزمان فائرنگ کے بعد موقع سے فرار ہو گئے. لاہور میں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، جہاں پر پریس کلب کے باہر نامعلوم افراد نے فائرنگ کی ہے، اور اس فائرنگ کے نتیجے میں نجی ٹی وی کا رپورٹر حسنین شاہ جاں بحق ہو گئے اور ملزمان فائرنگ کے بعد موقع سے فرار ہو گئے. کلب کے باہر نامعلوم افراد کی فائرنگ سے نجی ٹی وی کا رپورٹر حسنین شاہ جاں بحق ہو گیا اور ملزمان فائرنگ کرنے کے بعد موقع سے فرار بھی ہو گئے ہیں. لاہور میں افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں پریس کلب کے باہر نامعلوم افراد نے فائرنگ کی. عتیق ملک ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہے. عتیق، بتائیے گا یہ کیا معاملہ ہے، ہوا کیا ہے؟ جی بالکل، شہر لاہور میں جو ہے فائرنگ کی واقعات میں مسلسل اضافہ جو ہے دیکھنے کو مل رہا ہے. اب جو ہے وہ صحافی بھی ان فائرنگ کے واقعات میں جو ہے وہ نہیں بچ پا رہے ہیں. نامعلوم افراد کی جانب سے جو ہے وہ لاہور شملہ پہاڑی کے قریب جو ہے وہ فائرنگ کی گئی ہے، اور فائرنگ کی زد میں آ کر جو ہے وہ نجی ٹی وی کا جو کرائم رپورٹر جو ہے وہ اس معاملے میں جو ہے جاں بحق ہو گیا ہے. جبکہ بتایا جا رہا ہے کہ نامعلوم افراد جو ہے وہ موٹر سائیکل پر آئے تھے. 2 افراد تھے، جن میں سے پچھلے بیٹھے ہوئے افراد نے جو ہے وہ فائرنگ کی، اور گاڑی میں بیٹھے حسنین شاہ کو جو ہے وہ قتل کیا گیا ہے. اور قتل کرنے کے بعد جو ہے وہ دونوں موقع سے جو ہے فرار ہو گئے ہیں، جبکہ پولیس جو ہے وہ موقع پر موجود ہے اور تمام تر تحقیقات جو ہے وہ کی جا رہی ہیں. پولیس کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ سی سی ٹی وی کیمرے کی مدد سے جو ہے وہ ملزمان کی تلاش کی جا رہی ہے. اب تک جو ہے وہ ابتدائی تحقیقات میں جو ہے پولیس موقع پر موجود ہے، اور جلد جو ہے ملزمان تک جو ہے پہنچا جائے گا. جی ٹھیک ہے عتیق ملک، بہت شکریہ، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. ضلع خیبر کی تحصیل جمروت میں تورخیل اور آفریدی قبائل پولیو مہم کا بائیکاٹ کر دیا ہے. تورخیل قبیلے کا کہنا ہے کہ جب تک علاقے میں بجلی بحال نہیں کی جاتی ہم پولیو مہم کا بائیکاٹ کریں گے، جبکہ آفریدی قبیلے نے کرش پلانٹ کی عدم بحالی کے خلاف احتجاجاً پولیو مہم کا بائیکاٹ کیا ہے.
کراچی کے ضلع وسطی میں جدید اسلحے کی نمائش، نوجوان ہوائی فائرنگ بھی کرتے رہے، جدید اسلحہ لے کر گاڑی میں گھومنے والوں کو کسی نے بھی نہیں روکا۔ تفصیلات جانتے ہیں آج جس کے نمائندے فیضان جلی سے۔ فیضان بتائیے گا۔ کرن، بالکل جدید اسلحہ تھامے نوجوانوں کی ویڈیو سامنے آئی ہے۔ ضلع وسطی کا علاقہ بتایا جاتا ہے اجمیر نگری، جہاں پر ایک شادی کی تقریب میں جو ہے وہ جدید ہتھیاروں سے ہوائی فائرنگ کی گئی۔ اس فائرنگ کی ویڈیو سامنے آئی، اس کے بعد فائرنگ کرنے والے جو نوجوان ہیں ان کو جدید اسلحے کے ہمراہ گاڑی کے اندر شہر کے مختلف علاقوں میں، ضلع وسطی کے مختلف جو ہے وہ علاقوں میں گھومتے گشت کرتے جو ہے وہ دیکھا گیا، اور نوجوانوں نے نہ صرف اسلحہ تھامے رکھا گاڑی کے اندر لے کے گھومتے رہے بلکہ ویڈیو بھی بنا کے جو ہے وہ اپنی وائرل کری۔ تاہم ویڈیو سامنے آنے کے بعد جو ہے وہ ملزمان کے جو فائرنگ کرنے والے افراد ہیں ان کے چہرے واضح طور پر فوٹیج میں دیکھے جا سکتے ہیں، لیکن تاحال پولیس نے ان افراد کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں کی ہے۔ جی فیضان جلیس، بہت شکریہ، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ چنیوٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی مقامی قیادت کے زیر اہتمام کسان بچاؤ ریلی کا اہتمام کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں آئی نیوز کے نمائندے عمر سجاد سے۔ بالکل پنجاب کے دیگر شہروں کی طرح آج چنیوٹ میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے کسانوں کے حق کے لیے جو ہے احتجاج کیا گیا ہے۔ احتجاج کا جو سلسلہ ہے وہ پریس کلب کے سامنے جو ہے جاری ہے۔ اس وقت میرے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کس وجہ سے کیا کہیں گے۔ سر، احتجاج کیا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے، کیا حقوق لے کے آئے ہیں کسانوں کے؟ حقوق کسانوں کے تو بہت زیادہ ہیں جی۔ کسان تو میرے خیال میں سب سے جو پسا ہوا طبقہ ہے وہ کسان ہے، اور نہ اس کی کوئی منڈی میں سنوائی ہے، نہ اس کی کوئی کھیت میں سنوائی ہے، نہ اس کی کوئی حکومت میں سنوائی ہے۔ اور اب تو انہوں نے حد کر دی ہے کہ جو لائن لگ کے، ایک تو لائن میں لگاتے ہیں کھاد کے لیے، اوپر سے پولیس جاتی ہے اور ڈنڈے مارتے ہیں۔ کھادیں جو ہیں وہ ملک میں نایاب ہو چکی ہیں، کھادوں کے ساتھ ساتھ جو ہے ریٹ بھی بڑھا دیے گئے ہیں اور کھادیں مل بھی نہیں رہی، جس کی وجہ سے آج پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان اور رہنما جو ہے کسانوں کے حقوق کے لیے باہر نکلے ہیں۔ جی، کیٹی بندر کی سمندری حدود میں لاپتہ ہونے والے ماہی گیروں کی تلاش جاری ہے۔ 9 افراد کی تلاش کے لیے پاک بحریہ مقامی غوطہ خور حصہ لے رہے ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں آج اس کے نمائندے امر لال سے۔ امر لال، بتائیے گا، لاپتہ ماہی گیروں کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن ابھی جاری ہے؟ جی بالکل۔ 2 روز قبل کیٹی بندر کے تیز ہواؤں اور لہروں میں جو 3 لانچیں ڈوب گئی تھی، جس میں سے 10 افراد لاپتہ ہو گئے تھے۔ ان میں سے 3 آج صبح ایک لاش مل گئی ہے، باقی 9 ہو گئے، جن کی تلاش کے لیے پاکستان نیوی اور میرین ایجنسی اور مقامی جو غوطہ خور ہیں وہ ریسکیو کر رہے ہیں۔ مکمل کوشش کے باوجود ابھی تک وہ 9 افراد ہیں وہ لاپتہ ہیں۔ ان کی تلاش کے لیے کوششیں بھی جاری ہیں، مقامی غوطہ خور بھی وہاں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ڈپٹی کمشنر ٹھٹا، ایس ایس پی ٹھٹا اور پیپلز پارٹی کے رہنما وہ مکمل طور پر موجود ہیں۔ جو لوگ جن کے اندر لاپتہ ہیں، ان کے جو ورثہ موجود ہیں، ان کو بھی وہ سہولیات مہیا کی جا رہی ہے۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، اس کو جو 2 دن سے زائد عرصہ گزر چکا ہے، جو 10 افراد جو کراچی اور ٹھٹا اور بدین کے ہیں وہ لاپتہ ہے۔ ان کی تلاش ابھی تک کی جا رہی ہے۔ امر لال، بہت شکریہ، آپ تفصیلات دے رہے تھے۔ گھوٹکی میں گزشتہ روز خود کو بم سے اڑانے والے مبینہ دہشت گردوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ دوسری جانب ہلاک ہونے والے مبینہ دہشت گرد امام دین کے ورثاء نے پولیس مقابلے کو جھوٹا قرار دے دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ امام دین شاہ عبداللطیف یونیورسٹی میں 3rd ایئر کا طالب علم تھا۔ اعلی حکام واقعے کی شفاف تحقیقات کرائیں اور ہمیں انصاف فراہم کیا جائے۔ واقعے پر پولیس کا کہنا ہے کہ یہ حساس معاملہ ہے، ہم مزید تفتیش کر رہے ہیں۔ مردان میں یوریا کھاد کی شدید قلت ہے، جس سے کاشتکار شدید پریشانی کا شکار ہے۔ اس وقت ہمارے نمائندے فیاض آفریدی کاشتکاروں کے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانتے ہیں۔ جی فیاض، بتائے گا کیا کہنا ہے کاشتکاروں کا؟ جی بالکل، اس وقت میں مردان کے علاقے تاؤس خان قلعے میں موجود ہوں۔ اس وقت ہمارے ساتھ زمیندار موجود ہے جو کہ کھاد نہ ملنے کی وجہ سے پریشان ہے۔ ہم سال میں ایک کاشت کرتے ہیں جو گندم ہوتا ہے، جس سے ہماری سب کی گھر کی جولیاں چلتی ہے نا، اس کی وجہ سے ہمیں سونا پہلے تو مل نہیں رہا ہے، اگر ملے گا تو وہ پہلے 1700-2800 روپے کا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ جیسا کہ آپ نے کاشتکاروں کی باتیں سنی، اس کا یہی کہنا ہے کہ سال میں ہمارا ایک ہی فصل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے گھر کا چولہا جلتا ہے۔ ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے کہ کھاد سستی کرے اور ہمیں فراہم کرے تاکہ ہمارے گھر کا چولہا جل سکے۔ جی
उधर चिश्तिया में भी खाद का बहरान ताहाल खत्म न हो सका। चिश्तिया शहर और मज़ाफ़ाती इलाकों के किसानों ने खाद की अदम दस्तयाबी पर एसी ऑफिस के सामने धरना दिया। किसानों का कहना है कि इंतजामिया की मिलीभगत से खाद को ब्लैक में फरोख्त किया जा रहा है, लेकिन किसानों को खाद नहीं दी जा रही। आला हुक्काम मामले का नोटिस लें और खाद के सस्ते दामों फरहमी यकीनी बनाई जाए। सांगड़ में इंतजामिया की गफलत से वाहिद तफरीही पार्क ज़बू हाली का शिकार है। इस वक्त पार्क खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। मज़ीद जानते हैं अब्दुल रहमान खास खैरी से। जी बिल्कुल, इंतजामिया के नाक तले सांगड़ का वाहिद चिल्ड्रन पार्क इस वक्त मुकम्मल तौर पर जंगल और खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। 2017 में इस चिल्ड्रन पार्क का इफ्तिताह किया गया था, जिसमें झूले लगाए गए थे, तमाम तर जो कि बच्चों के लिए यहाँ पर सहूलियात फराहम की गई थी, लेकिन कोरोना वायरस के बाद इस पार्क को बंद कर दिया गया था। इस वक्त जंगल का नमा पेश कर रहा है, झूले टूट चुके हैं, झाड़ियां इस वक्त उग चुकी हैं, कोई भी सफाई नहीं हो रही है। यहाँ पर फैमिलीज और बच्चों ने पुरजोर मुतालबा किया है डिप्टी कमिश्नर सांगड़ से कि खुदारा फौरी तौर पर इस बात का नोटिस लिया जाए, यहाँ पर बेलदार तैनात करके इस पार्क को फौरी तौर पर बहाल किया जाए, सफाई की करवाई जाए और जो यहाँ पर खस्ता हाली का एक जंगल का नुमा कम से कम इसकी देखभाल करके बच्चों के लिए तफरीह फराहम की जाए। जी, गलियात में 3 फीट से ज्यादा बर्फ पड़ने से मरी रोड समेत तमाम लिंक रोड बंद हो गए। लाखों की आबादी का जमीनी राब्ता शहर से कट गया। लोग घरों में महसूर हैं। तर्जुमान GDA के मुताबिक हैवी मशीनरी के जरिए गलियात के तमाम शाहरात का सफाई का काम जारी है। जलालपुर पीरवाला में शहरियों ने कोरोना SOPs को मुकम्मल नजरअंदाज कर दिया। इंतजामिया भी SOPs पर अमल दरामद करवाने में संजीदा नजर नहीं आती। मजीद बताएंगे मुजफ्फर आस्ता है। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला में, जहां ओमिक्रॉन कोरोना वायरस के खदशात बढ़ रहे हैं। और अगर बात करें शहरियों की, तो शहरी कोरोना SOPs को मुतवातिर नजरअंदाज करते हुए दिखाई देते हैं। शहरियों की जानिब से ना ही फेस मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है और ना ही समाजी फासले को यकीनी बनाया जा रहा है। किसी भी सरकारी और गैर सरकारी दफातर में शहरियों और अमला की जानिब से SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा, जबकि दूसरी जानिब इंतजामिया की जानिब से भी SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए कोई खातिर खा इंतजाम दिखाई नहीं दे रहे, जिसकी वजह से कोरोना वायरस के खतरनाक तरीन किस्म ओमिक्रॉन बढ़ने के खदशात लाहक हो गए हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि शहरी कोरोना SOPs को फॉलो करें, क्योंकि एहतियात इलाज से बेहतर है। जी, चारसदा जुडिशल कॉम्प्लेक्स में नामालूम अफराद की फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हो गया। मकतूल के साथ मौजूद अफराद ने मौके पर ही 2 मुल्जिमान को काबू करके पुलिस के हवाले कर दिया। हाजी सयाब नामी शख्स पेशी पर आया था कि घात लगाए मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। DHQ अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद लाश को गुरसा के हवाले कर दिया गया। जगशुरा में सरसों की फसल के हवाले से किसानों को क्या मुश्किलात दरपेश हैं, जानते हैं वहां मौजूद आज न्यूज के नुमाइंदे खालिद से। जी खालिद। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं जगजुमरा में, जहां पर सर्दियों के मौसम में सरसों की काश्त की जाती है। जमाना कदीम से ही सरसों को बड़ी अहमियत हासिल है। इसकी सबज सबज पत्तियों से सब्जी साग बनाया जाता है, जो लज्जत और ग़िज़ाइयत में अपनी मिसाल आता है, जिसे लोग चकजुमरा के शहरी मजे ले लेकर खाते हैं और अपने दोस्त अहबाब को गिफ्ट भी करते हैं। और इसके पीले पीले फूलों से बालियां बांधी हैं, जिनको सुखाकर इनसे तेल तैयार किया जाता है, जो खाने और मालिश के काम आता है। दिमागी खुशी को दूर करने और बालों को लंबा करने के लिए लोग इसे सरों पर लगाते हैं। अभी हमारे साथ एक किसान मौजूद है, ये इनसे बात करते हैं। जनाब, अगर हुकूमत साडे जिमीदारां ते अगर थोड़ी जी तवज्जो देवे ते असी इस फसल नू होर ज्यादा दूना कर सकने आ। सरपरस्ती हुकूमत दी साडे उत्ते होवे ते आयल इंतहाई कामयाब है, सिर वास्ते भी खाण वास्ते भी। जैसा कि जिम्मेदार हजरात का कहना है कि अगर हुकूमत की सरपरस्ती हासिल हो और हमें बैनुल अक़वामी मंडियों तक रसाई मिल सके, तो हम इससे बहुत वसी पैमाने पर काश्त करके हमें इससे बहुत सा ज़रिए मुबादला कमा सकते हैं, जो मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकता है। सियालकोट के इलाके मुरादपुर में मोबाइल फ्रेंचाइज की दुकान पर डकैती हुई है। CCTV फुटेज में मुसल्लह अफराद को लूट मार करते देखा जा सकता है। डाकू खातून मुलाजिम से जेवरात और नकदी लूट कर फरार हो गए। पुलिस ताहाल किसी मुलजिम को गिरफ्तार नहीं कर सकी। सियालकोट में बढ़ती वारदातों पर शहरियों में तशवीश पाई जाती है। खानेवाल में 6 करोड़ की लागत से बनाई गई झील का 3 मरतबा इफ्तिताह किया गया, मगर इंतजामिया की अदम तवज्जो के बाइस झील खंडरात का मंजर पेश कर रही है। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद अशरफ कादी।
खानेवाल में जिला इंतजामिया और मुंतखब नुमाइंदों की जानिब से शहरियों को तफरीही फराहम करने के लिए 6 करोड़ की लागत से तामीर की जाने वाली झील का मंसूबा 4 सालों में मुकम्मल किया गया, मगर एक ही झील का 3 मरतबा इफ्तिताह किया गया। 2017 से लेकर 2021 तक मुतअद्दिद बार इफ्तिताह किए गए और अब चंद माह कबल डिप्टी कमिश्नर खानेवाल और साबिक MP निशात अहमद खान डाहा मरहूम और चेयरमैन बल्दिया मसूद मजीद ने झील का इफ्तिताह किया था, जिनकी अदम तवज्जोही के बाइस कुछ रोज गुजर जाने के बाद ही झील खंडरात में तब्दील हो गई। खानेवाल में चूंकि पहले ही बहुत कम पॉइंट हैं एंजॉयमेंट के, ट्रीटमेंट के, इसलिए ये जो है ना लाखों करोड़ों रुपया लगा के उन्होंने जाया किया हुआ है। यहाँ पे नमैशी तौर पे आई वो कश्तियां वगैरह रेस्क्यू की लेके जब ओपनिंग की है, एक दिन झील चली है ये, उसके बाद चली नहीं है। और झील में लाखों रुपए मालियत के 1500 से जायद लगाए गए पौधे भी खुश्क होना शुरू हो गए हैं। यहाँ पे खानेवाल में झील बनाई थी सैरो तफरी के लिए, अब यहाँ पे सब कुछ खत्म हो गया। खानेवाल में ये पहले ही तफरीही मकाम था, ये भी बनते साथ ही जैसे ही पानी भरा, लेकिन इसकी कोई हालत नहीं थी, फौरन ये टूटना शुरू हो गई है। तो अब ये भी बन रहा, मैं अपनी हुकूमत से गुजारिश करना चाहता हूँ, बराए मेहरबानी हमारा कोई तफरीही मकाम बनाया जाए या इसे चालू किया जाए ताकि हम तफरीह कर सकें। फर्स्ट टाइम कॉलेज होते हैं, सेकंड टाइम कुछ खेलने को टाइम मिलता है, अकेडमी जाना होता है, लेकिन कोई तफरीही मकाम नहीं है खानेवाल से। और झील के बिजली के बिल की अदम अदायगी के बाइस वाबड़ा हुकाम ने कनेक्शन भी काट कर ट्रांसफार्मर तक उतार लिए हैं। शहरियों ने हुकूमत पंजाब, कमिश्नर मुल्तान और डिप्टी कमिश्नर खानेवाल से झील की फौरी बहाली का मुतालबा किया है। कैमरामैन राहिल अब्बासी के साथ मोहम्मद अशरफ गादी, आज न्यूज खानेवाल। अभी आपको बताएं, कलोर कोर्ट में बच्चे से ज्यादती करने वाले मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक बच्चे से ज्यादती की खबर मिलने पर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश की गई और मुलजिम को 1 घंटे में ही गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम को कल अदालत में पेश करके रिमांड लिया जाएगा। ननकाना साहब में बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया, बच्चों और बड़ों ने पार्क्स का रुख कर लिया। मजीद अहवाल बता रहे हैं चौधरी अफजल हक अपनी रिपोर्ट में। पंजाब भर की तरह ननकाना साहब में भी बराने रहमत ने खुनकी का जोर तोड़ा तो मौसम भी खुशगवार हो गया। नजला, जुकाम और खांसी से तंग शहरियों ने सुख का सांस लिया। गर्दो गुबार से हटे हुए पौधे और दरख्त निखरे तो शहरियों के चेहरे भी खुशी से खिल उठे। बच्चों बड़ों ने खुशगवार मौसम से लुत्फ उठाने के लिए पार्कों और ग्राउंडों का रुख किया। अभी बारिश होने से मौसम काफी खुशगवार हो गया है और हम अपने दोस्तों के साथ ग्राउंड में पार्क में खेलने के लिए आए हैं। पार्क में खेलने आए हुए हैं, मौसम का बहुत अच्छा, बारिश का मौसम है और हम सारे दोस्त बाहर ही खेलने आए हुए हैं क्रिकेट और हमें बहुत मजा आ रहा है, हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं खेल के। ज़री माहिरीन के मुताबिक हालिया बारिशों से फसलों की पैदावार पर खुशगवार असर पड़ेगा। महकमा मौसमियात ने आइंदा चंद रोज के दौरान पंजाब के बलाई और मैदानी इलाकों में मजीद बारिश का इम्कान जाहिर किया है। बारिश होने से मौसम खुशगवार हो गया है। नौजवान कहते हैं कि वो खूब हल्ला गुल्ला करेंगे। चौधरी अफजल हक, आज न्यूज, ननकाना साहब। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने सराय आलमगीर का दौरा किया और गांव नरवाल में फ्री डायलिसिस सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, शहरियों को साफ पानी की फराहमी मेरा मिशन है। 250 अरब रुपए से एहसास प्रोग्राम के तहत गरीबों को दे रहे हैं। कनकोट सिविल अस्पताल में 3 रोजा फ्री आई कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें 200 मरीजों के मुफ्त ऑपरेशन किए गए। हुजूर बख्श मंगी की रिपोर्ट देखते हैं। कंदकोट में अल शफा ट्रस्ट की जानिब से PPL इंतजामिया के तावन से आंखों के इलाज के लिए सिविल अस्पताल में 3 रोजा फ्री कैंप का इनेकाद किया गया। यहाँ पर ग्लाइकोमा, कैटरेक्ट, टेरिजियम, क्लेजियन, मुख्तलिफ किस्म के सर्जरी हम लोग कर रहे हैं और बाकी OPD बाहर चल रही है। हजारों OPD हो चुकी हैं। मुफ्त ऑपरेशन कर रहे हैं और मुफ्त जो ना चश्मे दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी उम्मीद है कि 70-80 तक जो ना ऑपरेट हो जाएंगे। काफी सारे रश लगा हुआ है। यहाँ पर जो है डॉक्टर साहब ने ये PPL की तरफ से जो लगाया है कैंप्स, माशाल्लाह इनमें डॉक्टरों की बेहतरीन काम चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से अंदर जो ऑपरेशन थिएटर में भी बेहतरीन तरीके से वो काम कर रहे हैं। कैंप में आंखों के माहिर स्पेशलिस्ट डॉक्टर यासिर, डॉक्टर अल्लाह बख्श और स्पेशलिस्ट सर्जन डॉक्टर आगा शाहजहान और डॉक्टर ओम ने 1000 से ज्यादा मरीजों का चेकअप जबकि 200 मरीजों की आंखों का ऑपरेशन किया। इस महंगाई के दौर में अल शफा की जानिब से इस तरह की कैंप्स लगाकर लोगों का मुफ्त इलाज और मुफ्त ऑपरेशन किया जा रहा है। इन्होंने यहाँ की अवाम ने ये मुतालबा किया है कि अगर इस तरह की हर रोज कैंप्स लगी रहें तो अवाम के लिए फायदेमंद साबित हो सकती हैं। कैमरामैन आफ्ताब भुट्टो के साथ हजूर बख्श मंगी, आज न्यूज, कंदकोट। सिंध के उसूल पसंद सियासतदान और अवाम दोस्त रहनुमा सरदार रहीम बख्श सूमरो को बिछड़े आज 17 बरस बीत गए। वो सिंध के पहले वजीर आला खान बहादुर अल्लाह बख्श के फर्जंद थे। उनकी जिंदगी पर यह रिपोर्ट देखते हैं।
खान बहादुर अल्लाह बख्श सोमरो के फर्जंद सरदार रहीम बख्श सोमरो 1919 में शिकारपुर में पैदा हुए। उन्होंने आला तालीम अलीगढ़ से हासिल की। उनके वालिद अल्लाह बख्श सोमरो सिंध के पहले वजीर आला बने। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, गांधी, जवाहरलाल नेहरू और अबुल कलाम आजाद से सरदार रहीम की मुताद्दिद मुलाकातें हुई। उन्होंने इन बड़े रहनुमाओं से सियासत के जौहर सीखे। उन्होंने अपनी जिंदगी के 60 बरस सियासत के कारजार में लगाए। कई बार सूबाई असम्बली और 2 बार कौमी असम्बली के रुकन भी रहे। 4 बार सूबाई वजीर भी रहे। 1970 के आम इंतखाबात में सरदार रहीम बख्श पीपल्स पार्टी के खिलाफ आजाद हैसियत से इलेक्शन जीतने वाले वाहिद लीडर थे। उन्हें उसूल परस्त सियासतदान के तौर पर जाना जाता है। अयूब खान दौरे हुकूमत में उन्होंने उसूलों की बुनियाद पर अपनी वजारत कुर्बान कर दी। सरदार रहीम बख्श ने अवाम से राब्ता हमेशा बरकरार रखा। रहीम बख्श सोमरो ने अपने आखिरी अय्याम कराची में गुजारे, जहां वो 24 जनवरी 2005 को चल बसे। उनकी तदफीन आबाई शहर शिकारपुर में हुई। सिंध के अवाम आज भी उनकी खिदमत का एतराफ करते हैं। रुझान में बलोची सकाफत को उजागर करने के लिए ऑल पाकिस्तान घुड़दौड़ का मेला सजाया गया, जिसमें मुल्क भर से घुड़सवारों ने शिरकत की। सुल्तान मजारी की रिपोर्ट देखते हैं। रुझान में सजा घुड़दौड़ का सालाना सकाफती अमन मेला, जिसमें सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के नामवर घुड़सवारों ने हिस्सा लिया। ट्रैक पर दौड़ से घोड़ों को देखने के लिए शायकीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। रेस में हिस्सा लेने वाले घोड़ों की खातिर तवाज़ो देसी घी और मक्खन से की जाती है। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार दोस्त मोहम्मद मजारी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। लाहौर में सेक्रेटरीट चौक पर ऑल पंजाब वाटर मैनेजमेंट एसोसिएशन का धरना 7वें रोज में दाखिल होगा। तफसीलात तारिक खान की इस रिपोर्ट में देखते हैं। ऑल पाकिस्तान वाटर मैनेजमेंट एसोसिएशन की जानिब से सेक्रेटरीट चौक पर धरना 7वें रोज भी जारी है। सख्त सर्दी और बारिश के मौसम के बावजूद मुजाहिरीन की बड़ी तादाद धरने में शरीक है। मुजाहिरीन ने चौक पर ही खैमे लगाकर डेरे डाल लिए हैं। ज़राअत का दिल्ली शोबा वाटर मैनेजमेंट उसके मुलाजमीन हैं। पंजाब भर के 1362 मुलाजमीन हैं, जिन्हें 1 जनवरी 2022 से नौकरियों से निकाल दिया गया है। 7 दिन से हम लगातार इस हड़ताल पे हैं। अगर हमारे मुतालबात तस्लीम न हुए तो हम यहाँ खुदकुशी कर लेंगे। हम घर वापस अपने मुतालबात मंजूरी करवाए बगैर वापस नहीं जाएंगे। मुजाहिरीन का कहना है कि अभी तक इनसे कोई भी मुज़ाकरात या इनके मुतालबात सुनने नहीं आया। बरतर मुलाजमीन के बच्चे भी अपने वालिदैन की बहाली के लिए एहतजाज में मौजूद हैं। हमारे बाबा ने 17 साल एक नौकरी में काम किया है, इसी नौकरी में, और उनको 17 साल के बाद निकाला जा रहा है। हुकूमत कहते हैं घर जाए, घर में फाके हैं। स्कूल जाते हैं, स्कूल वाले कहते हैं आपने स्कूल नहीं आना, आपकी फीसें नहीं अदा हो रही। हुकूमत से बस यही गुजारिश है कि मेरे पापा को दोबारा नौकरी पे बहाल किया जाए। धरने के बाद सेक्रेटरीट चौक ट्रैफिक के लिए मुसलसल 7वें रोज बंद है, जबकि अमन व अमान बरकरार रखने के लिए पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद है। मुजाहिरीन का कहना है कि जब तक उनके मुतालबात तस्लीम नहीं होते उनका धरना जारी रहेगा। कैमरामैन नासर अली के साथ तारिक खान, आई न्यूज लाहौर। पंजाब में सख्त सर्दी और धुंध का राज है। शहरी नजला, जुकाम और बुखार में मुब्तला होने लगे। धुंध के बायस मोटरवे मुख्तलिफ मुकामात पर बंद है। आसमान पर बादल ही बादल। लाहौर समेत पंजाब भर में मौसम काफी ठंडा ठार हो रहा है। ठिठुरती सर्दी शहरियों को नजला, जुकाम और बुखार जैसी बीमारियों में मुब्तला कर रही है। शदीद सर्दी में धुंध भी कुछ कम नहीं। मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात से बंद करना पड़ा। हद निगाह बेहतर होने पर मोटरवे M2 और M3 को खोल दिया गया। महकमा मौसमियात ने आइंदा चंद रोज मैदानी पंजाब में धुंध की सफेदी बढ़ने की पेशगोई कर रखी है। बर्फबारी से स्वात का कुदरती हुस्न मजीद निखर गया। सयाहों की बड़ी तादाद बर्फबारी से लुत्फानंदोज हो रही है। स्वात से अनवर अंजुम की रिपोर्ट देखते हैं। जैसे ही पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली तो मकामी सयाह जोम उठे। सयाह टोली की शक्ल में स्पिनोबो से सुकैसर तक 3 से 4 फुट पड़ने वाले बर्फ में आइस ब्रेकिंग की और दीगर आने वालों के लिए रास्ता साफ किया। तो हमारा हाइकिंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, क्योंकि वो इतनी बहुत सारी बर्फ थी ना कि उसमें हमें मजा आती। जितना आगे आप जाते जा रहे थे उतना ये बर्फ की जो मिकदार है वो बढ़ती जा रही थी, तो उसके साथ हमें मजा आता जा रहा था। मकामी सयाहों ने मुश्किल स्नो हाइक से लुत्फ उठाया और आतंक के साथ साथ एक दूसरे को बर्फ के गोले बना बना कर मारते रहे। 7 पुश्तों की गजलें गा कर हाइक को यादगार बना दिया।
ममता लाड़ समादर मानुनो। हमने जिस तरह आइस ब्रेक करके यहाँ पे इस जगह पे पहुंच गए तो ये बहुत इसकी खूबसूरती को देख के हमारी सारी थकावट जो है वो दूर हो गई। सुकैसर स्वात की दीगर सयाहती मकामात में एक खूबसूरत इजाफा है जहाँ से वादी का दूर दूर तक नजारा किया जा सकता है। अनवर अंजुम, आज न्यूज स्वात। मज़ीद खबरें भी शामिल करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। आज के साथ रहिए। बुलेटिन में कहेंगे खुश आमदीद। पीपल्स पार्टी की जानिब से मीरपुर खास में भी किसानों के हक में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मजीद जानते हैं आई न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद सिद्दीक से। पीपल्स पार्टी की जानिब से किसान के हुकूक के लिए आवाज उठाई जा रही है, जद्दोजहद की जा रही है उनके लिए, और मीरपुर खास में इस मकसद के लिए आज एहतजाज रखा गया है पीपल्स पार्टी की जानिब से। और मीरपुर खास की यहाँ पर पीपल्स पार्टी की मुकामी क़यादत आई हुई है। हम इनसे जानते हैं जो है आज का एहतजाज किसान को क्या फवायद पहुँचाएगा। उनका साथ देने के लिए आज पूरे मुल्क में एहतजाज किया। 1800 की यूरिया है और 3000 की जो लोग कैसे खरीद सकते हैं। इमरान खान साहब बोलते हैं कि जी मैं उतरने के बाद ज्यादा खतरनाक, क्या खतरनाक होगा? इससे ज्यादा कोई खतरनाक हो सकता है? जहाँ पे खुदकुशियां हो रही हैं, जहाँ पे मईशत बिल्कुल नीचे गिर गई है। इनका कहना यह है कि आज का जो एहतजाज है वो दरअसल मरकजी हुकूमत को इस बात को बराबर कराना है कि किसान जो है वो मुश्किलात में है, किसान को खाद की परेशानी है, लाहक को, इसके अलावा दीगर मसाइल लाहक है जिनको फौरी तौर पर हल किया जाना किसान को फवायद पहुंचा सकता है। जी, बढ़ती हुई महंगाई और किसानों को दरपेश मसाइल के खिलाफ ननकाना साहब में भी पीपल्स पार्टी ने ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च किया। तफसीलात बता रहे हैं चौधरी अफजल हक। की तरह ननकाना साहब में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कमरतोड़ महंगाई और खाद समेत किसानों के दीगर मसाइल के खिलाफ ट्रैक्टर ट्राली किसान मार्च किया। पीपल्स पार्टी पंजाब खवातीन विंग की सदर समीना खालिद गुरकी ने खुसूसी शिरकत की। आज जो एहतजाज कर रहे हैं भरपूर पूरे पाकिस्तान में अपनी किसानों के साथ, अपने जो ज़राअत से हमारे रिलेटेड जितने भी मसाइल है उसके लिए एहतजाज कर रहे हैं कि हम ये जो इशू है हमारे यूरिया इस वक्त महंगा है, खाद, बीज, सब कुछ, और आप देखिए बिजली तो रोज बरोज महंगी हो रही है, उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है, तो हम इसलिए एहतजाज करें। किसानों ने हुकूमत से खाद की फराहमी और दीगर मसाइल के हाल का मुतालबा किया है। चौधरी अफजल हक, आज न्यूज, ननकाना साहब। कोयटा समेत बलूचिस्तान के 15 अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज हो गया। 15 लाख से ज्यादा बच्चों को इंसदाद पोलियो वैक्सीन पिलाने का हदफ मुकर्रर है। कोयटा से ही रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद खालिद। कोयटा में इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू की जा चुकी है। पोलियो रजाकारों की मुसलसल काविशों की बदौलत गुज़िश्ता साल सिर्फ एक केस रिपोर्ट हुआ। मैसेज यही है कि एक सेहतमंद माशरे के लिए सेहतमंद बच्चों की ज़रूरत है और ये एक वबा की शक्ल होती है। अगर एक बच्चा इससे इफेक्ट होता है तो कुछ 60-70 बच्चे उसके आसपास वो इस खतरे में आ जाते हैं। तो हम अपने बच्चों की खातिर हम वालिदैन को कहेंगे, हम सारे लोगों को कहेंगे आपके तवज्जुह से कि अपने बच्चों को बढ़ चढ़ के पिलाएं। रिफ्यूजल जितने भी हैं वो आ जाएं, अपने बच्चों को पिलाएं और इस मतलब अपने बच्चों को सेहतमंद रखें। तकरीबन हमारे यहाँ ये इस यूसीस के अलावा भी बाहर से भी लोग खरोटाबाद, सब्जल रोड, सरियाब रोड से भी लोग यहाँ पर आते हैं इलाज के लिए, क्योंकि हमने बहुत लोगों के ताउन से हमने इस सेंटर को बहुत अच्छा बनाया है। कोयटा समेत सूबे के 15 अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान 5 साल तक की उम्र के 15 लाख बच्चों को वैक्सीन पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है, जिसके लिए 6600 टीमें काम कर रही हैं, जिनमें 429 खवातीन रजाकार मराकज़ सेहत पर भी मुतय्यन की गई हैं। कैमरामैन हाकिम अली के साथ मोहम्मद खालिद, आज न्यूज, कोयटा। पंजाब के 9 अजला में भी 5 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम जारी है। 70 लाख से ज्यादा बच्चों को मर्ज से बचाव के खतरे पिलाए जा रहे हैं। खतरनाक पोलियो के मर्ज को जड़ से खत्म करने के लिए मुहिम शुरू। पंजाब के 9 अजला में 5 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज हो गया है। लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, रहीम यार खान, डेरा गाजी खान, राजनपुर और मियांवाली में 5 साल तक की उम्र के 70 लाख से ज्यादा बच्चों को मर्ज से बचाव के कतरे पिलाए जा रहे हैं। 5 रोजा मुहिम के दौरान 60,000 से ज्यादा पोलियो वर्कर्स घर घर जाकर दाखिली और खारजी फिक्स पॉइंट्स पर फराइज सरंजाम दे रहे हैं। पंजाब पोलियो प्रोग्राम की सरबराह सुंदस इरशाद के मुताबिक 14 माह के दौरान सूबे से एक केस भी रिपोर्ट नहीं हुआ और माहौलियाती नमूने भी मनफी रहे हैं। वालिदैन बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाना